وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ اب کوئی بھی دشمن پاکستان پر بری نظر ڈالنے کی جرت نہیں کرے گا۔ دشمن سمجھتا ہے وہ ہم سے طاقتور ہے۔ بھارت کو احساس نہ ہو سکا امن کی خواہش کمزوری نہیں طاقت ہے۔ سفارتی محاذ پر بھی درست ثابت ہوئے۔ بھارت کا جھوٹ یکسر مسترد کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں مارکہ حق میں تاریخی فتح کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ترقی کا سفر پروپیگنڈا، جعلی خبروں یا بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی سے نہیں روکا جا سکتا۔ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کی ترقی روکنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ پاکستانی عوام کی حمایت سے افواج دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے بہتر طرز حکمرانی ناگزیر ہے۔ بلوچستان حکومت کی عوامی بہبود، سماجی معاشی ترقی کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ فیلڈ مارشل کی بلوچستان میں امن، استحکام اور ریاستی عملداری برقرار رکھنے میں سیکیورٹی فورسز کے کردار کی تعریف۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف کے قتل کیس میں ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ملزم کو چوری سمیت 2 مقدمات میں 10 سال قید کی سزا، ایک مقدمے میں 1 سال کی سزا سنائی گئی۔ مجموعی طور پر 25 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ پروسیکیوشن نے سزائے موت دینے کی استدعا کی۔ ثنا یوسف کو پچھلے سال اسلام آباد میں گھر میں قتل کیا گیا تھا۔ ثنا یوسف کے والدین کا عدالتی فیصلے پر اظہار اطمینان، کہا کہ اس میں انصاف ہوا، فیصلہ پورے معاشرے کے لیے آیا ہے، عوام کو سبق ہے کہ ایسے کام کا یہی انجام ہوگا۔ ثنا یوسف قتل کیس میں 50 سے زائد سماعتیں ہوئیں، مجموعی طور پر 27 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ منشیات فروش ملزمہ کو عدالت میں پروٹوکول دینے کی تحقیقات، ایس ایس پی سٹی علی حسن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ انکوائری رپورٹ آئی جی سندھ کو بھجوا دی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمہ کی عدالت پیشی پر پولیس نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ عدالت میں ملزمہ کو موبائل فون دیا گیا۔ آئی جی سندھ نے کہا منشیات فروش ملزمہ کیس میں بڑے نام سامنے آئے۔ اطلاع ہے ملزمہ کے بہت سے بینک اکاؤنٹس ہیں۔ منی لانڈرنگ کا مسئلہ ایف آئی اے دیکھے گی۔ ملزمہ زیادہ تر لاہور میں رہتی تھی، کراچی آئی تو اسے مشکل سے پکڑا۔ منشیات بیچنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا آپریشن غضب للحق پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ آپریشن نے دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ آپریشن کا مقصد افغان طالبان سے وابستہ دہشت گرد پراکسیز سے معصوم شہریوں کی جان و مال کو بچانا ہے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور معاونت فراہم کرنے والے ڈھانچوں کو نشانہ بنانا ہے۔ دہشت گردی کے ناسور کو مکمل ختم کرنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ افغانستان سمیت پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان کو ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور داعش کے خلاف بامعنی اقدامات کرنا ہوں گے۔ قطر، سعودی عرب، یو اے ای کے کہنے پر ایران پر حملہ روک دیا۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ایران پر حملہ کرنے سے صرف 1 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ مختلف رہنماؤں نے مجھے کہا مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران ڈیل کے قریب ہے، ایران کو معاہدے کے لیے محدود وقت دے رہے ہیں، ایٹمی ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے، مذاکرات یا عسکری کارروائی سے ایران جلد اپنے ہرمز کھولے گا۔ یقین نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ایران کے خلاف ایک اور کارروائی کرنی پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایران جنگ نے پورے خطے کو معاشی کمزوری میں دھکیل دیا۔ پاکستان نے فریقین کو مذاکرات کے ذریعے امن کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ ہماری کوششوں سے امریکہ اور ایران میں جنگ بندی ہوئی۔ امریکی اور ایرانی صدور کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہا خطے سمیت عالمی امن، استحکام اور ترقی کے لیے پاکستان نے بطور نیٹ ریجنل سٹیبلائزر اقدامات اٹھائے۔ کوئٹہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں دوست ممالک کے طلباء اور افسران کی موجودگی کو سراہا۔ عسکری سفارتکاری اور باہمی تعاون کی اہمیت پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ گیریزن کا دورہ، کہا افسران اور جوان بدلتے جنگی ماحول کے مطابق خود کو مسلسل تیار رکھیں۔ جدید جنگی تقاضوں، ابھرتی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشن سے ہم آہنگ رہنے پر زور۔ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کو اعلیٰ تربیتی معیار، فکری صلاحیت اور پیشہ ورانہ مہارت کی علامت قرار دیا۔ فیلڈ مارشل کی بلوچستان میں تعینات افسران اور جوانوں سے ملاقات۔
वफाकी हुकूमत की सूबों को 400 अरब रुपए इजाफी जमा कराने की हिदायत। IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए फैसला किया गया। ज़राअत, सर्विसेज, प्रॉपर्टी सेक्टर में टैक्स की वसूली बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत सूबाई वज़राए ख़जाना के साथ वीडियो लिंक इजलास। बिजली की तकसीमकार 3 कंपनियों की निजकारी के लिए पेशकश तलब। फेस्को के लिए 7 जुलाई, गैपको के लिए 6 अगस्त, आइस्को के लिए 7 सितंबर आखिरी तारीख। सरमायाकारों को 51 से 100% तक शेयर्स इंतजामी कंट्रोल देने की पेशकश। हुक्म ने कहा निजकारी से माशी इस्तेहकाम, बिजली चोरी का खात्मा, लोड शेडिंग में कमी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान की डायरेक्शन डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा बलोचिस्तान में महफूज माहौल फराहम करना नागुज़ीर है। मादनियात से मुंसलिक मंसूबों पर काम करने वाली कंपनीज का एतमाद बरकरार रखना होगा। खैबर पख्तूनख्वा को गैस की अदम फराहमी पर वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे कमेटी से बात करेंगे। गंदम की तरसील बंद होने से आवाम को महंगी गंदम खरीदना पड़ रही है। विफाक हमारे हिस्से का पानी दे, गंदम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के शहरी गर्मी से निढाल। मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर रहा। दादू, नवाबशाह समेत सिंध के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी पड़ी। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। कराची में शदीद गर्मी में भी लोड शेडिंग। लियारी, सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, कायदाबाद में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाइन्स एरिया, सोल्जर बाजार, खारादर, लसबेला में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में 8 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सिर्फ 30% फीडर्स पर एलामिया लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब का दौरा अज़रबैजान। वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया। हुकाम ने प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग दी। पंजाब पवेलियन में मौजूद शुरका और आलमी वफूद की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें। फ्लैगशिप मंसूबे, अपनी छत अपना घर की दस्तावेजी फिल्म की भी नुमाइश। बांग्लादेश की दूसरे टेस्ट में गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान पर वाइट वॉश के साए। पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन, बांग्लादेश को 3 विकेटें दरकार। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 316 रन बनाए। 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। रिजवान 75 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मनशियात फरोश मुलजिमा का मनशियात बरामदगी केस में 3 दिन का रिमांड मंजूर। मुलजिमा को कराची की अदालत में पेश किया गया। दरख्शां थाने में 5 और गिजरी थाने में 3 मुकदमात दर्ज। नवाज शरीफ का इंतखाबी सियासत में मुतहरिक होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी इंतखाबी मुहिम की खुद क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के साथ अलग दफ्तर बनाने का भी फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पार्लियामेंट को मजबूत और अवामी राय का हकीकी तर्जुमान बनाना होगा। आइन कौमी मिसाक है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी की जिम्मेदारी है। सियासी क़ुव्वतों को आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद होना होगा। मौलाना फजलुर रहमान को बिलावल भुट्टो की जानिब से गुलदस्ता पेश किया गया। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कराची में कोई मंसूबा मुकम्मल करना आसान नहीं होता। BRT मंसूबा मुस्तक़बिल को देख कर बनाया जा रहा है। मंसूबे के कुछ मसाइल वफाकी हुकूमत की मेहरबानियों से हैं। कोशिश है मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करें। हैदराबाद में लतीफ़ाबाद तक हैदर चौक नया रूट शुरू करने जा रहे हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के शॉपिंग सेंटर में डकैती। डाकू दुकान से 2 करोड़ 19 लाख रुपए का सोना, 20 लाख रुपए लूट कर ले गए। दूसरी दुकान पर भी मुलाजिम से 70 लाख रुपए का सोना छीन लिया। मुतासरा ताजिर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज।
कराची के ताजिर से 25 लाख रुपए भत्ता मांगने पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक ताजिर को 14 मई को व्हाट्सएप पर गैर मुल्की नंबर से कॉल आई। मुलजिम ने 25 लाख रुपए भत्ता तलब किया। भत्ताखोर ने दुकान पर आने जाने के वक्त और फैमिली की तफसील भी बताई। IG सिंध ने कहा, कराची समेत सिंध भर में कोई नो गो एरिया नहीं। 600 किलोमीटर कच्चे के इलाके को 650 डाकुओं से क्लियर कराया गया। 40 बड़े डकैत और डाकू मारे गए। कच्चे में अब पुलिस चौकियां, अस्पताल कायम करने जा रहे हैं। पेशावर में बैंक डकैतियों में मुलव्विस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। CCPO ने कहा, मुलजिम SHO की शहादत भी मुलव्विस हैं। सेफ सिटी कैमरों की मदद से कलदम तंजीम के मुलजिमान को भी हिरासत में लिया। पाकिस्तान और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में $32 करोड़ कर्ज मुआहदे पर दस्तखत। रकम नेशनल हाईवे बहाली मंसूबे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। विफाकी वजीर अहद चीमा ने कहा, मंसूबा मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाएगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1091 पॉइंट्स का इजाफा। 1,62,896 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख़याल। नवाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक में तारीख़ी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते उस्तवार हैं। उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इज़हार। होशियार, जाली ऐप पर एक क्लिक से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। बैंकों ने एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को खबरदार किया। कहा, APK फाइल से मोबाइल फ़ोन हैक हो सकता है। हैकर्स फ़ोन में मौजूद बैंकिंग ऐप से आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। ऑनलाइन ऐप पर खरीदो फरोख्त करने वाले खबरदार। लाहौर में ऑनलाइन ऐप पर राब्ता करके शहरियों को लूटने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खरीदारी के बहाने 23 से ज़ायद शहरियों को लूटने में मुलव्विस हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कोयटा के समंगली रोड और सरियाब सर्विस रोड फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। मुतालिका हुकाम को तरक्याती मंसूबों में रुकावट बर्दाश्त न करने की हिदायत। रेलवे स्टेशन के करीब मुजव्वज़ा मुतबादल यू टर्न्स की रिपोर्ट भी तलब कर ली। पंजाब में खेलों का बजट 3 गुना तक बढ़ाने की तैयारी। माली साल 2026-27 में 21 अरब रुपए का बजट मंजूर करने की तजवीज़। रमा माली साल में 88 तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल कर ली गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जब वादे वफा नहीं कर सकते तो करते क्यों हो? ये नहीं हो सकता। विफाकी हुकूमत मुल्क का सोचे और कराची का ना सोचे। पता नहीं आखिरी बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कब कराची आए थे। मेयर कराची ने शाहराह भुट्टो पर अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह किया। अमेरिकी शहर सैन डियागो में मस्जिद पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों कम उम्र हमलावर भी मस्जिद के करीब गाड़ी में मुर्दा हालत में पाए गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शुबा है वाक़या नफरत अंगेज़ी पर मबनी हमला था। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, इंसानी हमदर्दी मिशन पर इसराइली कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। गिरफ्तार इंसानी हुकूक के कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का टेस्ट 16 अगस्त को होगा। PMGC ने MD कैट की तारीख का ऐलान कर दिया। लाहौर में डॉक्टर्स ने धात का टुकड़ा निगलने वाले बच्चे की जान बचा ली। जनरल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे ने खेलते हुए धात का टुकड़ा निगल लिया था। डॉक्टर्स ने फेफड़ों में फंसा धात का टुकड़ा निकाल दिया। पेशावर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने फुटपाथ, शहरियों के लिए सहूलत या अजियत। कई मैनहोल्स के ढक्कन गायब तो कई टूट फूट का शिकार। बाड़ा रोड का फुटपाथ सहूलत से ज्यादा खतरा बनने लगा। जहानिया में बादशाह ग्रुप लोगों की तवज्जो का मरकज। शहरी ने घर की छत पर 21 भारी भरकम बकरे पाल लिए। बादशाह ग्रुप के बकरों को देखने और खरीदने वालों का तांता बंध गया।
ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، نوابشاہ اور نورپور تھل میں 46 ڈگری ریکارڈ، سبی ملتان میں 45، فیصل آباد سرگودھا سکھر میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کراچی میں پارہ 35 ڈگری تک پہنچا، لاہور اسلام آباد میں 43، پشاور میں 42 ڈگری ریکارڈ، کوئٹہ میں 36، گلگت میں 37، اسکردو میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد میں 41 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔